آل جموں کشمیر پنچایت کانفرنس راج ہمارا حکم تمہارا راج ہمارا حکم تمہارا راج ہمارا حکم تمہارا آپ کے مادھیم سے انتظامیہ تک اور عہدیداروں تک بالا سرکار تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. جیسے یونین ٹیریٹری آپ جموں کشمیر میں آپ پنچایتی راج سنتے ہو, میری دانش میں یہ پیچیدہ راج چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے جو ساتھی ابھی تک بول رہے تھے یہ کسی پنچایت کے راجے ہیں, لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے تو ان کو ہی بلائے بنا اگر ایک میٹنگ ہو رہی ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے. آپ سمجھ سکتے ہو جس پنچایت کے اندر یہ اس وقت سبھا ہو رہی ہے اس پنچایت کا سرپنچ غلام رسول صاحب آپ کے سامنے سے فریاد کر رہا ہے, تو آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری انتظامیہ کتنا ان پنچایتی راج کو پنپنے کی بات کر رہی ہے. رہا سوال, آپ کو شاید یاد ہوگا ہماری اوتھ سرمنی کے دوران ستیہ پال ملک دین گورنر اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر نے یہ خدشہ اظہار کیا تھا کہ انتظامیہ پنچایتوں کو دبانا چاہتی ہے. لیکن ہم انتظامیہ کو ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں. ہم ہندوستان کے شہری ہیں اور ہمارے پاس شہری حقوق جو ہیں بہت زیادہ ہیں. وہ ہماری برادری کے لوگ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے بھی ہم کو یہ نہ کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں آپ کے کیا مسائل ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت کورونا کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں, چل رہا ہے, ہم وہ محسوس کرتے ہوئے اپنے علاقوں میں اپنی پنچایتوں میں اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں. ہر کوئی رہنما خطوط جو بالا سرکار کی جانب سے آتا ہے وہاں ہم لاتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھیوں نے ہم کو چھوڑ کر اس بیٹھک میں حصہ لینا اور مزے لوٹنا یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. چونکہ ہم بھی راجے ہیں, اگر آپ راجے ہو تو آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ لے کر ہمارے مسائل کو لے کر اس بیٹھک میں جاتے یا اس بیٹھک سے باہر نکلتے تو ہم کہتے واقعی آپ ہماری برادری ہو. بہرحال آپ نے چونکہ پہلے ہی تار باندھ کے رکھے ہیں چند ایک افسروں کے ساتھ, تو آپ کا وہاں جانا تو یہ ضروری تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کہ ہمارا جو 3 ٹائر سسٹم ہے, ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب, ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب یہ خوب جانتے ہیں کہ اس کو پنپنے کے لیے جو ہے زمین پہ عملی وہ جامہ پہنانے کے لیے زمین پہ لایا جانا چاہیے. لیکن کچھ پرزے جو ہیں, کچھ لوگ جو ہیں اپنے منظور نظر لوگوں کو لے کر وہ جاتے ہیں. حالانکہ ہم 3 سال سے ہماری ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, ہماری آل جموں کشمیر پنچایت کانفرنس 12 سال سے یہ لڑائی لڑ رہی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو افسروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس علاقے کو بیچنا چاہتے ہیں, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ, حالانکہ مجھے بھی گنجائش بن گئی تھی اندر جانے کی, لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا. چونکہ ایک سرپنچ کو جب مشورے میں نہیں لیا جاتا, میری طرح وہ بھی ایک سرپنچ ہے, تو اس کے لیے میں بھی ان کے احتجاج میں شامل ہوا. اور ہم پورے یہاں پہ جو بیٹھک ہوئی ہے, جو احتجاج کر رہے ہیں, ہم اپنے عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں. چونکہ ہماری جو قائد جو اس محکمے کی منتری ہیں اس کے سامنے اگر ہم فریاد نہیں رکھ سکتے تو ہم کس منتری کے پاس جائیں گے. تو لہذا یہ ہمارا واضح پیغام ہے کہ ہمارے ساتھ اگر یہ جاتی ہوئی ہے یہ انتہائی افسوس ہے. اور میں پرائم منسٹر آف انڈیا جناب مودی صاحب سے یہ کہوں گا, اس طرح سے آپ کا ملک مضبوط نہیں ہوگا جب تک آپ کی پنچایت مضبوط نہیں ہوتی. میں ٹائیگر عبدالمجید کھانڈے سرپنچ تانترے پورا. سب سے پہلے میں اپنے سرپنچ صاحبوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو چینل کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور آج جو یہ ہماری یہاں میٹنگ ہوئی ہے یہ ایک بڑی خصوصی میٹنگ ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہمیں بڑے مطلب افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کیونکہ آج ایک میٹنگ ہو رہا ہے مطلب بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کے ساتھ, کچھ سرپنچ صاحبان کے ساتھ. وہ بھی ہمارا بھائی ہے, لیکن جو ہمارا ویڈیو صاحب ہے جو نئے آئے ہیں مطلب کچھ دن پہلے, اس کو چاہیے تھا سب سرپنچ صاحب کو بلانا چاہیے, ان کے ساتھ ایک میٹنگ لینا چاہیے تھی. کیا آپ کے کون کون سے پنچایت سے آپ وابستہ ہو اور آپ کا کیا مسئلہ مسائل ہے. تو یہ ہمیں بہت بڑی افسوس کی بات ہے, مطلب اس نے ہمیں بلایا نہیں ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے مطلب مشکلات کا سامنا اس سے کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جموں کشمیر کے اندر کس وقت کون سی حالات ہے. مطلب ایک سرپنچ کو کہیں بھی کچھ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, کیونکہ اپنے جان پر کھیل کے اس وقت اپنے مسئلے مسائل گاؤں کے لوگوں کا کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو ہم آگے اس کو بڑھاتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو پنچایت راج کا بنایا ہے یہ ایک مطلب لوگوں کے لیے ایک بینیفٹ ہے. لیکن یہاں کے آفیسر صاحبان جو ہے یہ کوئی توجہ نہیں دے رہا سرپنچ صاحبوں کو. کہتے ہیں یہ سرپنچ صاحب کیا ہے,
हम ही सब कुछ है। लेकिन हम कहना चाहते हैं उन ऑफिसरों को, हमारे पास भी ऐसा पावर है, हम जब अपना पावर इस्तेमाल करेंगे फिर आप लोगों को पता चलेगा सरपंच के पास कितना। क्यों? आई एम सरपंच बाय द पीपल, हमें लोगों ने वोट दिया, हमें लोगों ने बनाया है। वी आर इंडियन, हम सब हिंदुस्तानी है, हम कोई बाहर विदेशी नहीं है। क्योंकि हम अपनी डिमांड रख रहे हैं, क्योंकि जब हमें एक ऑफिसर इज्जत नहीं देगा तो हम कैसे उसको देंगे। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जितने भी है हमारा एक पूल है, ब्लॉक और हमारा एक पूल है, और सरपंचों और ब्लॉक के ऑफिसरों का उस पुल को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पुल को बीच में ये काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अगर ऐसा होगा तो हम रिजाइन देंगे, तमाम सरपंच साहिबान रिजाइन देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब इस वक्त सेंटर से कोई भी मिनिस्टर साहिबान आता है, कोई भी आता है, उसको चाहिए हर सरपंच साहब को बुलाना चाहे, उनसे मीटिंग करना चाहे। क्योंकि अगर सरपंच राज हुआ है, किस लिए हुआ है? हम गरीब हमारे पीछे है, गरीबों को बड़ी उम्मीद है हमसे। अभी देखो 16, 17, 18 से जिन लोगों ने काम किया है उनको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, उनका कुछ मिल रहा है। अभी आए मकान कुछ लोगों को मिला है, 15, 16, 17 में उनको भी कुछ नहीं मिला है। तो ये अब क्या है? हम समझते हैं खाली सरपंच राज का बलि का बकरा हमें बना दिया है। सरपंच साहब है, सरपंच साहब है। अरे भाई सोचो, कम से कम हमारे बारे में भी, हमें भी बाल बच्चे हैं, हमारे बारे में सोचो। हमारी मतलब क्या आप हमारे कोई प्रोटेक्शन दे रहे हो? हमें कहीं भी खतरा ला हो सकता है, लेकिन उसके बरकस भी हम लोगों के शाना बन आगे चलते हैं, लोगों का काम करते हैं। हमें टेंशन है, चाय पीने हमें लोग नहीं देते हैं। आटा 2 किलो हम पकाते हैं, सुबह 2 आदमी 4 आदमी हमारे घर में बैठते हैं, वो वही खाते हैं। हम लोग भूखा निकल जाते हैं लोगों का काम करने के लिए। बिल्कुल, कम से कम सोचना चाहिए ना। हम ऐसा नहीं है, हम टाइगर है। जब हम भड़केंगे ना फिर हम डरेंगे नहीं, अपने हक पे कुछ भी करेंगे, अपने हक के लोगों के लिए, अपने हक के लिए। बल्कि लोगों का डिमांड जो होगा, जेन्युइन डिमांड होगा, उसको हम रोड पे लेके आएंगे आवाम को। जो सरपंच आज मीटिंग में वो मतलब वो हमारे भाई है, लेकिन उनको सोचना चाहिए थी। ये एक हमारा एक भाईचारा है। हिंदुस्तान जो है एक डेमोक्रेसी है, एक मतलब लोकतंत्र देश है। यहाँ सबको अपना अपना बात रखने का हक है, क्योंकि हमें राइट मिल रहा है, जैसे इंडिया गवर्नमेंट से मतलब राइट मिला है, हम बोल सकते हैं। देखिए, अपने हक के लिए कोई भी बोल सकता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको चाहिए हमसे बात करना, भाई आप भी आ जाओ, हम सब भाई भाई है। बानहाल एरिया कोई भी सरपंच साहब वो हमारा भाई है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि देखिए, हमें बड़े अफसोस है कि मतलब कि ये लोग कहते हैं चलो वो सरपंच नहीं है, ये सरपंच है, हमारा ही टांग ऊपर हो जाए। ऐसा नहीं होता है। हमारा ये सरपंच साहब है, ये सरपंच साहब है, हम बराबर है, हमारे बराबर ओहदा है। अगर कोई मतलब आदमी बड़ा है लेकिन ओहदा तो बराबर है, इसलिए सोचना चाहिए इनको। और हम गुजारिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, क्योंकि हमारा जो हुकूक है हमें मिलना चाहिए। और अगर हम इस पर मतलब गौर नहीं किया गया, हम डायरेक्ट गवर्नर साहब के पास जाएंगे, उसके सामने हम रिजाइन डाल देंगे। यहाँ नहीं, गवर्नर के सामने रिजाइन हम कर देंगे पूरे सरपंच साहिबान। मरकजी वजीर की आमद थी बानिहाल के अंदर, और यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम रखा गया था जिसको जो है खुशाइंद कदम करार दिया जा सकता है भारतीय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती के मुकाम यहाँ पर यह है कि पंचायत राज एक्ट को जहाँ एक तरफ से जो है बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं कि इसको हम मजबूत करने जा रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम हकीकत पे देखें तो यहाँ पर पंचायत राज एक्ट को और पंचायती नुमाइंदों को न कि मजबूत किया जा रहा है, बल्कि इनको दिन ब दिन जो है तरह तरह के जो है कवानीन लाकर जो है इनको रौंदा जा रहा है। इनको किसी भी किस्म का वो अपनी हैसियत या अपना जो इनका प्रोटोकॉल है उसका बिल्कुल भी इनको एहसास तक जो है यहाँ नहीं दिलाया जा रहा है। क्योंकि आज जहां तक ताल्लुक है आज के दौरे का, क्योंकि हम जमीनी सतह से जुड़े हुए नुमाइंदे हैं पंचायती राज के, हमें बेस का पता है, हमें ग्रास रूट लेवल का पता है कि किस तरीके की परेशानियां हमें उनका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन हो या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने मंजूर नजर जो चंद सरपंच साहिबान हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है, क्योंकि वो उनके कठपुतली हैं, वो उनकी हाँ से हाँ मिलाएंगे, असली हकीकत से जो है वो यहाँ पर रोशनास नहीं कराएंगे कि हमें किन चीजों का जो है मसाइल का सामना है। पहले तो इन्होंने पंचायतों को जो है ठेकेदारों के हवाले किया और वहां से जो है पंचायत राज की धज्जियां उड़ाई। 3 लाख से कम के जो टेंडर्स भी उन्होंने जो है करवाए, उससे भी जो है पंचायत राज को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। और आज चूंकि एक मशवरे के साथ, एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ एक लिस्ट अगर जो है यहाँ पर फ्रेम की जाती, जो है हर ब्लॉक को नुमाइंदगी दी जाती,
ब्लॉक्स के अंदर क्या मसाइल हैं, पंचायतों में क्या मसाइल हैं, उनको बेहतर तरीके से जो है अगर यहाँ पर सरपंच को शॉर्ट लिस्ट किया जाता, हम सब की राय उसमें जो है शामिल हाल होती, तो हम कहते कि कहीं न कहीं जो है हमें पंचायत राज में नुमाइंदगी मिल रही है। लेकिन उसके बरकस हो ये रहा है कि चंद लोगों को यहाँ बुलाकर जो है अक्सरियती पंचायत नुमाइंदों को जो है नजरअंदाज किया जाता है, जिसके लिए हम एकजुट होकर जो है अपना रिजाइन पेश करने के लिए बिल्कुल जो है तैयार हैं, क्योंकि ऐसे पंचायत राज से जो है हमें बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है और इस पंचायत राज को हम तस्लीम करने के लिए जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपको सलाम पेश करता हूं क्योंकि आपकी बहुत सी चैनलें यहाँ आई है और इसके साथ साथ मैं अफसोस भी करता हूं क्योंकि हमारी जो पंचायत है करावा पंचायत, जहां ये मरकज के वजीर टूर करने के लिए आ रहे हैं, जबकि मेरे इजाजत के बगैर वहां टूर कर रहे हैं। इन्होंने कम से कम मुझे पूछना था, मेरी पंचायत थी वहां और वहां ऑफिस बनाया है मेरी पंचायत में। लामर से लेकर करावा तक 5 पंचायतें पड़ती हैं, 5 में से एक को भी नहीं। ये मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने हमें बुलाया नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम होने चाहिए थे और हमारे 5 पंचायतें जो इग्नोर की गई, हर काम में, हर प्रोजेक्ट में, हर किसी मसले में इग्नोर की गई है। तो लिहाजा मैंने वहां भी डीसी साहब को भी फोन किया, एसडीएम साहब को भी फोन किया, एसएचओ साहब को भी फोन किया, बीडीओ को भी फोन किया। उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ इजाजत नहीं है। अगर मेरे पंचायत में मुझे इजाजत नहीं है, उनको कौन सी इजाजत है वहां मीटिंग करने की? क्या करते हैं वो? अगर हमें प्रोटोकॉल मिला है गवर्नर से, अगर एक सरपंच एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास जाएगा तो वो वेलकम करेगा, क्या यही प्रोटोकॉल है हमारे लिए? हमें बेइज्जती हो रही है लोगों में। लिहाजा इससे बेहतर है मरकज को सरपंच राज खत्म किया जाए और हम रिजाइन दे रहे हैं, हमने लिख कर रखा, हम भेज रहे हैं, हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। आज जो मरकज से मिनिस्टर आई थी, खासकर पूरे पंचायत में खाली इस एक डिपार्टमेंट के साथ हमारा ज्यादा कंसर्न होता था, लेकिन आज हमने हमारा दिल बहुत खुश हो गया था कि आज मरकज की मिनिस्टर यहाँ पे हमारे बीच में आ रही है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सरपंचों की भी एक टेंडरिंग निकाली है, जिसमें से बिलो रेट पर इन्होंने 4-5 पंचायतों को मुंतखब किया है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मुझे, मैं आज ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो पूरे डिस्ट्रिक्ट के सरपंच साहिबान जितने भी है, हर साइड से हमें यहाँ पे फोन आ रहे हैं, जो कि जितने भी सरपंच साहिबान हैं सब के सब इस वक्त तैयार है रिजाइन देने के लिए। पंचायत राज खुद एक गवर्नमेंट इस वक्त पंचायत राज एक्ट नाफिज कर रहा है, लेकिन इसकी दर्जा भी खुद ही उठा रहे हैं। ये जमीनी सतह पे पंचायती राज का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। मेरी गुजारिश है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप आइए, जो भी हमारा इस्तीफा कबूल करना चाहते हैं, और हम जितने भी सरपंच साहिबान हैं हमने अपना इस्तीफा यहाँ पे तैयार करके रखा है, लिख करके रखा है, और आज हम अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं। मैं साथ में आज हमने ये अपनी जगह पे अकाइश किया था कि आज हमारे बीच में एक मरकजी मिनिस्टर यहाँ पे आई। आज हमने एक साइड से नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है 2022 तक जितने भी जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी गांवों देहाती इलाका है जहां पे मकानों की जरूरत है, आज हम पूरे बूछार से बाई 2022 तक ये मकानात कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन मैं बिलखुसूस अपने पंचायत की बात कर रहा हूं, मैंने 250 मकानातों की जियो टैग करके रखा है और इनको दे दिया। 250 में से मुझे इन्होंने 25 और 30 मकानात दिए, बाकी इन्होंने सारे कैंसिल कर दिया है। बाकी बोलना तो बहुत कुछ था, बड़े जज्बाती हूँ इस वक्त हम सारे सरपंच साहिबान, लेकिन मेरी फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आइए, आप आइए, हमें टाइम दीजिए, कहाँ पे आप हमारा इस्तीफा कबूल करो